evening, everyone, and welcome to today's NutriLive session. Today, we've got a very interesting topic. We all understand that carbs are essential. However, we'll find out which is the right carb to have and how much to consume. What is the essence of GI and GL in carbs? And what is the role of fiber for our guts? To start the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto the virtual stage and listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I just hope that you had an early dinner and done some exercise, because there is nothing worse than having a late night dinner and going to sleep. I've always said this over and over again on this platform, and I strongly believe that repetition is the mother of all teaching. So I'm going to keep repeating it, because on the groups I keep seeing, that people are still having late dinners, and I know that it's it's a little inconvenient sometimes to have a late, have an early dinner, but it is all about planning. If you really understand the harmful effect that it does on your body to have a late night dinner, I'm sure you will get organized. The important issue over here is to understand that how harmful the late night dinner is on your entire holistic health. Once you understand that, you won't have a problem having an early dinner. Okay, today we are going to be talking about carbs. Now, carbs is a macronutrient. Social media is flooded with all kinds of information. Some information is good, some information is bad. You'll even hear some posts, read some posts where they will say that, you should have no carbs or carbs are bad. Trust me, that is not correct. You need carbs, because if you don't have carbs, you will not have energy. But the important fact is that you should first know what carbs to have. What are the right carbs? Are you consuming simple carbohydrates, or are you consuming complex carbohydrates? Now, just to, enlarge this subject a little bit, especially in North India, there used to be a saying that when you found somebody who was, a little old and he was still energetic, generally people would ask him, "Ki aap kis chakki ka aata khate ho?" All right, and this phrase, okay, has a deep hidden meaning behind it, because this is really true. This question is really true, because today, just you're changing the flour, that you are having your rotis with, can have a huge impact on your overall health. So check. It's one of the tick marks that you need to go to your kitchen and find out that where is your atta coming from. Okay, if it is simple carbs, if it is refined carbs, it is super refined, time to change. Okay, find out what really is good and what really is not good for your health. So first important fact is to figure out what carbs you should have. Okay, whether they are simple carbs or the complex carbs. Are you eating too much of refined stuff? Are you eating too much of super refined stuff? All this is not really good for your health. The second most important thing about carbs is when to consume them. There is nothing worse. When I mentioned in the beginning that there's nothing worse than having a late night dinner and going to sleep, I'll put an addition to that. There's nothing worse than having a late night dinner filled with carbs and going to sleep. Okay.
So the second most important thing you need to know is when to consume the carbs. Okay. Okay, you might be taking the right carbs, but when are you consuming them? And the third important thing to know is how much to consume. You see, in the olden days, when people used to do a lot of manual labor, they needed more carbs, okay, because they needed to expend their energy immediately. But with today's lifestyle, with today's advance in technology, lifestyles have become very convenient, lifestyles become very sedentary. And in order to fight that, okay, you need to do deliberate exercises. And when you do that, okay, you will need those carbs. But how much is the key factor? So three important points I've given you today. Which carb is the right one for you? How much to consume? And third one is when to consume. So today you are very fortunate because you're going to be listening from somebody who had absolutely no idea about these three factors. And once he made a decision to get into the community and he created an amazing transformation, lost some, 35 to 40 kilos of weight and felt good about it, felt nice, managed to retain it, and started following the simple principles of this holistic health community. So listen to Manoj very carefully because what Manoj has to say might have a significant impact on your holistic health. So over to Manoj. Thank you very much, Farooq. Thanks a lot. Let me just. Is it visible? Not yet, Manoj. Not yet. Okay. Now, I think yes. Yes. Yes, we can. Okay. Yeah. Thank you very much. यस फारूक, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जहाँ तक काब्स का सवाल है, मुझे तो ये भी नहीं पता था काब्स होता क्या है, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे नहीं रहता है। टू बिगिन विद आई स्टार्ट विद माय थोड़ा सा छोटा स्टोरी। अराउंड 2011-12 व्हेन आई वाज अराउंड 112-13 kg के आसपास, तो दैट टाइम आई थॉट मुझे वजन कम करना चाहिए, तो आई हैव मोर ऑफ प्रोटीन। किसने बोला था प्रोटीन खा लो ज़्यादा, तो आई थॉट दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। So I used to have North Indian Punjabi type दाल, thick दाल, पूरे बाउल भर भर के, पूरे बाउल भर भर के। And when I came to this community, then I came to know मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था, because दाल के अंदर तो खाली 20% के आसपास ही प्रोटीन है, वो भी पूरा प्योर प्रोटीन नहीं है। दैट मीन उसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स नहीं है, और बाकी का जो 18% है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। एंड देन आई शॉक किया, तब देन आई केम टू नो कि मेरा क्यों उस वक्त मुझे वजन बढ़े जा रहा है। मैं सोच रहा था मैं प्रोटीन ज़्यादा खा रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं कार्बोहाइड्रेट उसके साथ में ज़्यादा खाया जा रहा था। सो वेलकम एवरीवन। फ़ारूक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और सिर्फ एक ही बात है कि जिस तरह से हमने उनको अपने हेल्थ को उनके ऊपर पूरा छोड़ दिया है ना, अगर उस तरह अगर आप भी छोड़ दो तो हम में से हर एक इंसान जो उनके साथ में जुड़ा है वो एक गारंटी ले सकता है कि आप सही में मेडिकल फ्री हो सकते हो। और इसके लिए आपको बार बार ये बातें सुननी पड़ेंगी, ताकि जो फ़ारूक ने कहा कि बार बार बोलने से ही लोगों को आदत पड़ती है, एक बार बोलने से नहीं होता, और इसीलिए शायद हम हर 2 महीने में प्रोग्राम को रिपीट करते रहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट एंड डाइटरी हेल्थ, तो सबसे पहले जाना जाए कि कार्बोहाइड्रेट हम क्यों खाते हैं। तो बेसिकली हमारे शरीर को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी को हम गिनते हैं कैलोरी में। एनर्जी को जो बॉडी जानता है, साइंस जानता है, वो जानता है शुगर के नाम पे, ओके, ग्लूकोज के नाम पे। 3 चीज़ें बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स में ऐसे हैं जो हमें एनर्जी देती हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है फैट। आज हम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तीनों में फ़र्क ये है कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में बहुत जल्दी अंदर जाता है, बहुत जल्दी आपको एनर्जी देगा, और बहुत जल्दी वो रिलीज भी कर देगा, मतलब बहुत जल्दी आप थक भी जाओगे। उसके बाद प्रोटीन आता है। प्रोटीन आस्ते 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 आपके शरीर में जाता है, और फिर आस्ते 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 आपको थकान वापस महसूस होती है, आहिस्ते आहिस्ते, मतलब
एनर्जी आपको काफ़ी देर तक देगा। उसी तरह से फैट है, फैट और भी टाइम लगाता है, पहले तो डाइजेस्ट होने को, क्योंकि डाइजेस्ट होने को टाइम लगाता है तो आपको ग्लूकोज भी आस्ते आस्ते छोड़ता है, एनर्जी भी आस्ते आस्ते देता है और बहुत आस्ते आस्ते ख़त्म होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि आपने देख लिया कि एक ट्रिकी प्रोडक्ट है, एक ट्रिकी न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत जल्दी शरीर के अंदर घुसता है और बहुत जल्दी शरीर के बाहर आता है, और जबकि हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन और पानी, ये दो चीज़ का बना हुआ है। हाइड्रेट मतलब पानी होता है और हाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें होती हैं, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये हमारे शरीर के एनर्जी देने के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको मैं सिंपल बताऊं कि अनाज, आप अपने थाली को सिर्फ कंपेयर करिएगा कि आप कितना अनाज खा रहे हैं। अनाज से मेरा मतलब है दाल, चावल, रागी, आपका जवारी, बाजरा, है ना, जो भी है। उसमें दाल भी आ गया, उसमें भी कार्ब्स होते हैं। उसमें फ्रूट्स भी आ गए, फ्रूट्स में भी कार्ब्स होते हैं। बट प्राइमरीली हम जो एनर्जी जो लेते हैं वो लेते हैं कार्ब्स से, और कार्ब्स भी अनाजों से। ओके, ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि अगर हम कार्ब्स नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट हमारे शरीर पे कर पड़ सकता है। आपको थकान ज़्यादा लगी रहेगी, आप काम नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग जल्दी नहीं चलेगा, आपको सोचने की क्षमता आस्ते आस्ते कम होने लग जाती है जैसे जैसे आपके एनर्जी कम होती है। तो ये है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कार्ब्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप, बहुत लोग डाइट करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल निकाल देते हैं, लेकिन होता क्या है उससे, आपके शरीर के लिए जो प्राइमरी 3 ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर और ब्रेन, इन तीनों पे एनर्जी की कमी होने लगती है। तो सबसे पहले तो प्राइमरी सोर्स है, जब भी आपको कम एनर्जी कमी होगी तो इन तीनों को ही सप्लाई करेगा, बाकी चीज़ को सप्लाई नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली आप थके हुए महसूस करोगे, क्योंकि आपका हाथ पाँव चलाने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी। और उसमें भी ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप इस तरह से समझिए कि पूरे शरीर का 20%, 2% हिस्सा हमारा ब्रेन है, पूरे वजन का, पूरे शरीर के मास का 2% खाली ब्रेन होता है। लेकिन हमारे पूरी कैलोरी का, जो भी हम कैलोरी को हमारे शरीर को चाहिए होती है, उसका 20% ब्रेन को लगता है। 2% शरीर का हिस्सा, 20% एनर्जी लगता है। सो नाउ इमेजिन, अगर आपने बाकी सब चीज़ों को, कार्ब्स को अगर छोड़ दिया तो एनर्जी कितनी शॉर्टफॉल हो जाएगी, और कितना आपको बाकी चीज़ों पे काम, आपकी एफिशिएंसी पे बेसिकली कितना इफेक्ट पड़ सकता है। ये बेसिकली 3 चीज़ों से आपको मिलता है, शक्कर है, फाइबर है, शुगर जिसको बोलते हैं। लिटरली मतलब उसका शक्कर नहीं है, शुगर इज़ डिफरेंट। साइंटिफिक टर्म में जब हम बात करते हैं एनर्जी के लिए, फाइबर से मिलता है और स्टार्च से मिलता है। अब होता क्या है, हमको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती क्यों है, और किस तरह से ये हमारे शरीर में काम करता है। आपको ये समझ जाना चाहिए कि जिस तरह से हमारे मकान का, घर का, बिल्डिंग का, बंगले का, जो भी जहाँ भी हम रहते हैं, उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है ईंट, उसी तरह से हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा होता है सेल। हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसमें सेल तक जाना जरूरी है। अगर सेल तक जाएगा इसका मतलब है कि आपके सारे ईंट अच्छे हैं, उनमें बीमारी नहीं लगी है, वो खराब नहीं हो रहे हैं। और अगर सारे ईंट आपके घर के अगर मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपका शरीर ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, आपका घर ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। उसी तरह से अगर आपके सारे सेल अगर मजबूत हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कैसे होता है, हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, ब्लड जो एक नदी में जिसको बोलता हूँ, नदी के थ्रू उसमें अलग अलग व्हीकल्स होते हैं जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ले जाते हैं हर सेल तक। ओके, जिस तरह से हम जब भी शुगर खाते हैं, मतलब कोई खाना खाते हैं, जब वो मेटाबॉलाइज होता है, पचता है, तो उसकी जो एनर्जी है जिसको हम शुगर बोलते हैं, वो ब्लड में जाता है। तो ब्लड में इंसुलिन उसको पकड़ता है, मतलब इंसुलिन उसकी नाव हुई, ब्लड नदी हुई, शुगर जो है मतलब जो एनर्जी है वो उसका पैसेंजर हुआ। अब उसे जाना क्या है, उसको हर शरीर तक, हर सेल तक जाना है। तो इंसुलिन अगर आपके शरीर में अच्छा रहा तो हर सेल तक आपका शुगर जाएगा, और नहीं गया या फिर ज़्यादा हो गया तो शक्कर के उस ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा, और अल्टीमेटली जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि एनर्जी अपने आप को उसी रूप में सेव नहीं करती। तो क्या करता है हमारा शरीर, उस एनर्जी को फैट के रूप में कन्वर्ट करता है और शरीर में स्टोर करने लगता है। और उसमें जो सबसे पहले स्टोर होना चालू होता है वो होता है लीवर पे। और इसीलिए कोई आदमी मोटा हो ना हो,
अनहेल्दी हो ना हो बाहर से दिखने में, लेकिन अगर उसका आप लीवर चेक करोगे, बहुत चांस है कि उसका फैटी लीवर हो। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, जो फरूक बात कर रहे थे। ओके, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में स्टार्च और फाइबर आते हैं। इनका डिफरेंस हम देखते हैं। वो डिफरेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जबकि जो शॉर्ट जो सिंपल कार्ब है वो शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल से होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल से बना है, तो लॉन्ग चेन है तो उसको टूटने में टाइम लगेगा, इसीलिए उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और शॉर्ट चेन जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स वाला क्योंकि उसे टाइम लगता है डाइजेस्ट होने को, तो ब्लड शुगर लेवल ब्लड के अंदर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है। और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने का फ़ायदा यह है कि उसी तरह से वो फिर हर सेल के अंदर जाते रहता है। एक्सेस शुगर हमारे ब्लड के अंदर नहीं रहता, जबकि सिंपल शुगर तुरंत बढ़ता है और तुरंत हमारे शुगर के ब्लड के अंदर आपको रैपिड इंक्रीज दिखेगा। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ गया है, क्योंकि आप आहिस्ते आहिस्ते आपका कॉम्प्लेक्स शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपको काफ़ी देर तक ऐसा लगेगा आपको भूख नहीं लग रही है। जबकि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होगा, आपको बहुत जल्दी भूख लगनी चालू हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है लेस प्रोसेस्ड होता है, या फिर ना के बराबर प्रोसेस्ड होता है अगर आप उसको ज़्यादा प्रोसेस ना करो तो। और जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रोसेस्ड होता है। जैसा कि फ़रूक ने बताया भी थोड़ी देर पहले कि हो सके तो हम प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीज़ों से दूर रहें, और हो सके कि आप एक जजमेंट एक आप डिसीजन लो तो हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है, जबकि इसके अंदर बहुत कम या ना के बराबर डाइटरी फाइबर होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, बूस्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, डाइजेशन में टाइम लगता है, तो एनर्जी लेवल बहुत देर तक रहती है, जबकि सिंपल में ऐसा नहीं होता। तो बहुत जल्दी आपको एनर्जी देगा, बहुत जल्दी आप ड्रेन आउट हो जाओगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर फाइबर और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम करता है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, बाकी फंक्शंस को भी अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। और क्योंकि सिंपल के अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट और कोई विटामिन नहीं होते हैं, या फिर ना के बराबर होते हैं, तो वो बेनिफिट आपको सिंपल में नहीं मिलता। कॉम्प्लेक्स के जो एग्जांपल हैं, कैरेट हो गया, होल ग्रेन ब्रेड हो गया। ब्रेड का मतलब ब्रेड मत पकड़िएगा, हिंदुस्तान में ब्रेड का मतलब रोटी है ना। तो होल ग्रेन रोटी, जैसा कि फरूक ने बताया था, किस चक्की का आटा, तो चक्की का फ्रेश पिसा हुआ आटा। और फ्रेश आटे के ऊपर से मुझे एक और अच्छा एक बात याद आई है, जो मेरे ख्याल से हमारे कलीग मिस्टर राज ने बताई थी, कि अगर हम फ्रेश चक्की का आटा पिसा के लाते हैं, तो अगर आप उसमें देखोगे 15 दिन या 1 महीने के बाद उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जो मार्केट में पैक्ड होते हैं वो 6-6 महीने तक खराब नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर के हेल्दी बैक्टीरिया, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, वो रिफाइंड में निकाल दी जाती हैं मार्केट में जो मिलता है उसमें, इसमें नहीं निकाला गया है, और अपने शरीर के लिए अच्छे होते हैं। ओके, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाना, ओट्स और ब्राउन राइस भी आते हैं। ब्राउन राइस का एक अच्छा सब्सिट्यूट आपको आज और दूंगा, सुनते रहिए आप मुझे। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे तो एरिटेटेड ड्रिंक्स है, कोलाज वगैरह, केक हो गया, शुगर हो गया, सीरियल्स हो गए, और फ्रूट जूस वगैरह हो गया, है ना। फ्रूट जूस तो मैं कहता ही हूँ लोगों को कि ये सिर्फ मरीजों के लिए है, जिनमें चबाने की ताकत नहीं है, डाइजेस्ट करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तबीयत खराब है, बीमार है, उनके लिए फ्रूट जूस है। तो अब हेल्थ बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और कि अगर आप देखेंगे, अगर आपने देख ही लिया होगा, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो उसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वेट मैनेजमेंट में काम आता है, क्योंकि आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देते, है ना। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी रहती है, ब्लड मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, और हार्ट हेल्थ। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर जो फाइबर है, फाइबर के ऊपर हालांकि मैं बीच में लेटर हाफ में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ फाइबर को। क्यों? क्योंकि फाइबर के अंदर जो सोल्यूबल फाइबर है, उसका एक बहुत अच्छा काम है। वो क्या करता है, जैसे ही वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है,
तो वहाँ पर क्या करेगा, जो एक्सेस शुगर पड़ा हुआ है उसको पकड़ लेता है, वहाँ पर जो एक्सेस फैट पड़ा है, कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, उसको पकड़ लेता है और फिर उसको अपने साथ में बाहर निकाल देता है शरीर से। तो अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब खाया, कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब कार्ब्स में फाइबर भी है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, हेल्प करता है उसमें। और इसी तरह से हार्ट हेल्थ भी, क्योंकि वो शुगर भी पकड़ लेता है, एक्सेस शुगर, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी उसने पकड़ के अपने शरीर से बाहर निकाल दिया है। और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी निकाल दिया बाहर उसने, तो अपने हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, तो अब बात ये आ जाती है कि हमें खाना कितना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे या बात को समझेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट होता है, मतलब ये कि अगर आप दिन भर कुछ भी नहीं करें तो आपके शरीर को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उसका तकरीबन 50% हमें खाने से मिलना चाहिए। कार्ब्स खाने से हमें उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए। लेकिन है क्या, एवरेज इंडियन हाउस होल्ड ऑलमोस्ट 47% टोटल कैलोरी का होल ग्रेन से लेता है, 47%। ओके, और गांव में या रूरल एरिया में तो 70% है, क्योंकि वहाँ अनाज ही ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज इसके ऊपर हम 10% प्रोसेस्ड फूड खाने लग जाते हैं। अगर प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर सिर्फ कार्ब्स है और कुछ नहीं है, और वो भी सिंपल कार्ब्स। जबकि ये तो हो गया एवरेज, जबकि अर्बन एरिया में अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30%, और अर्बन हाउस होल्ड में हाईएस्ट इनकम ग्रुप वाले, ऊपर वाले, ऑलमोस्ट 30% कैलोरी प्रोसेस फूड से लेते हैं। तो 47 आपने ऑलरेडी होल ग्रेन से लिया है, 30% आपने प्रोसेस फूड से ले लिया, जो कि मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं, अनाज की, है ना, ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। 77% आपने ले लिया, जबकि हम बात कर रहे हैं 56% की। तो ये करंट सिनेरियो है, तो हमें उसे कम करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा बैलेंस में लाने के लिए। ओके, तो वो हम करेंगे। अब एक चीज आपको और जो समझनी है वो ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि जो भी खाना आप खाते हो उसके अंदर कितना शुगर है, सिंपल सब। नहीं, सॉरी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली आपको ये दिखाता है कि जो भी आपने खाना खाया है, प्रोसेस होने के बाद कितने जल्दी हमारे कितने जल्दी हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर को वो फूड छोड़ देता है, कितना जल्दी डाइजेस्ट होता है। ओके, ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो फूड जितना जल्दी शुगर को रिलीज कर देगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, उतने जल्दी हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर स्पाइक हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, है ना। पहले मैं यही सोचता था, और वैसे अगर देखेंगे तो 70 के ऊपर अगर इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो उसे हाई जीआई इंडेक्स वाला फूड बोला जाता है, मतलब उसका वो बहुत जल्दी शुगर छोड़ता है। लेकिन बात ये भी है ना कि उसके अंदर है कितना शुगर जो छोड़ देगा, तो अल्टीमेटली शुगर होना भी तो चाहिए उसके अंदर उतना सारा। तो जब हम दोनों चीज़ों को देखते हैं कि उसके अंदर कितना शुगर है और कितने स्पीड से वो छोड़ता है, तो एक फॉर्मूले के बाद जो फिगर आता है उस फिगर को बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये हो गया कि उसको शुगर छोड़ने की स्पीड और उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी, ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद जो फॉर्मूले से जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड। इसका मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना देखें, हम ग्लाइसेमिक लोड देखेंगे, तो हम सही तरीके से पता लगा सकते हैं कौन सा फूड हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया गया है, और ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको ये फॉलो करता था ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, और उस चक्कर में मैं वाटरमेलन नहीं खाता था। लेकिन जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि ग्लाइसेमिक लोड इसका बहुत कम है, मैंने उसे खाना चालू कर दिया। लेकिन अगेन, कि हम कितना खाते हैं वो भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि ग्लाइसेमिक लोड अगर कम है तो आप खाते ही जाओ, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो हमने पीछे स्लाइड में जो बात करी वही ये है। इसमें आप खाली ये ध्यान दे सकते हो कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर 0 से लेकर 55 के बीच में है तो उसे लो कहा जाता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर 69 तक है, 69 तक है, तो उसे मीडियम, और 70 के ऊपर है तो उसे हाई कहा जाता है। उसी तरह से ग्लाइसेमिक लोड अगर आप फॉलो करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 1 से 10 तक लो माना जाता है, 11 से 19 तक मीडियम, और 20 या 20 के ऊपर इसे हायर माना जाता है। ओके, तो फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से ग्लाइसेमिक लोड
ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप देख सकते हो, बट लेकिन नहीं। अब यहाँ पर एक पिक्चर से आपको बताया गया कि दोनों में फ़र्क क्या है, किस तरह से हमारे शरीर को ये इफेक्ट कर सकता है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो एक ग्लाइसेमिक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला एक एक गार्डन को रिप्रेजेंट किया है ग्रीन कलर का, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ रहा है। ओके, तो जो फाउंटेन है उसमें से आहिस्ते आहिस्ते पानी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते जमीन पे गिर रहा है, आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा फाउंटेन में रह रहा है, आधा जमीन में जा रहा है, तो वहाँ से फिर हरे हरे घास आगे आ रही है, कुछ पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं और ग्रीनरी बढ़ रही है। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो एक स्पीड से आ रहा है पानी फुहारे में, तो उसमें क्या होगा, उतने स्पीड से जमीन के अंदर तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, पानी वहीं पर जमा रहेगा, तालाब जैसा बन जाएगा, कीचड़ जैसा बन जाएगा, गंदगी वहाँ बढ़ती जाएगी। यही सेम फॉर्मूला हमारे शरीर के साथ भी है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहा तो राइट वाला जो सिचुएशन है हमारे शरीर को ख़राब करेगा, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड रहा तो जो लेफ्ट साइड में है ग्रीन कलर का, वैसे हमारा शरीर हमेशा फलता फूलता रहेगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों दिया गया है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। व्हाइट राइस 73 17, आप इस चार्ट को देखिएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे किनोआ, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड 13 है, 13, है ना। उसी तरह से ओट्स मिल में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 55 और ग्लाइसेमिक लोड इज 13। ब्राउन राइस इज 63 एंड 16। ओके, अब मैं आपको एक प्लॉट दिखाता हूँ, वो रहा ये है बीफ एच का लो GI वाइट राइस 52, इसका GI इंडेक्स, इसका GI इंडेक्स को याद रखिए। और यहाँ पर देखिए ब्राउन राइस से कंपेयर करेंगे, ब्राउन राइस 68 है जबकि बीफ एच का 52 है। अब ये हो गया GI इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड ब्राउन राइस का है 1616 जबकि बीफ एच राइस का है ओनली 12। तो ब्राउन राइस का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट, या फिर जैसे आप किनोआ का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट, किनोआ क्योंकि इंडियन फूड नहीं है, इंडिया में इतना पैदा नहीं होता, ये मैक्सिको या साउथ अमेरिका के सदर्न स्टेट से आते हैं, तो वहाँ पर अगर देखोगे तो भले वो 53 और 13 है, लेकिन हमारे सामने 52 और 12 जो कि बीफ एच राइस का है, बीफ एच राइस उससे अच्छा है। ये आपके लिए बहुत एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है ना। अब बात आ जाती है कि हमें खाना कब चाहिए। फरूक का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो बोलते हैं कि अगर आपको जितने बुरे काम करने जल्दी करके ख़त्म कर दो, अगर करने भी हैं तो, वैसे नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको कुछ कार्ब्स अगर ज़्यादा खा रहे हो बाई चांस, सुबह खा लो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लिमिट से थोड़ा ज़्यादा खा रहे हो तो सुबह खा लो, रात को नहीं। ओके, जबकि सिस्टम आजकल पता नहीं ऐसे कैसे बन गया है कि पार्टियां रात को होती हैं और रात को ही सब टेबल सजते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, सुबह सुबह आप कार्ब्स ज़्यादा अच्छे से खा लोगे तो उसकी एनर्जी दिन भर आपको मिलते रहेगी और फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो पूरे दिन भर में अपनी हर एक्टिविटी को। इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, आपको कम स्लीपीनेस लगेगा, कम स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे और वर्कलोड रिड्यूस होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। ओके, क्योंकि सुबह सुबह इंसुलिन बहुत अच्छा हमारे शरीर में निकलता है, तो वो आपको जल्दी से आपके हर सेल तक पहुंचाने में मदद करेगा शुगर को। कैलोरीज आपकी कंट्रोल में रहेंगी क्योंकि दिन भर नहीं खाओगे आप, तो ज़्यादा सुबह सुबह खा लिया, बाद में आपने दिन भर काम भी कर लिया, तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बेटर मेंटल परफॉर्मेंस, जैसे ही हमने पढ़ा, क्योंकि आपको नींद अच्छी आई होगी तो दिन भर नहीं आएगी, तो आपकी, क्योंकि जब नींद नहीं आएगी तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, ब्रेन अच्छा काम करेगा तो ऑब्वियसली है आप सोच भी अच्छा सकते हैं और मेमोरी भी अच्छी रह सकती है आपकी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फाइबर पे। जैसा कि हमने फाइबर की बात करी थी, मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था। हमें फाइबर कितना खाना चाहिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, वुमेन और मेन के लिए थोड़ा अलग अलग है, और सेडेंटरी लाइफ और मॉडरेट लाइफ और हैवी वर्कआउट लाइफ के लिए भी अलग अलग है। ओके, बट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आज की ज़्यादा करके इस ग्रुप में जो लोग हैं वो अपना अंदाजन 30 से 40 पकड़ सकते हैं,
30 से 40 ग्राम हमें दिन भर में फाइबर खाना चाहिए। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दो टाइप के फाइबर हैं। पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। पहले सोल्यूबल को बताता हूँ। सोल्यूबल जो है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को बड़ा कर देता है, फुला देता है। ओके, क्योंकि ये फुला देता है तो काफ़ी देर तक पेट के अंदर रहता है, तो इससे सैटिस्फैक्टी प्रमोट होती है। सैटिस्फैक्टी प्रमोट होना बेसिकली कि आपको फुल ज़्यादा लगेगा, भूख जल्दी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि पेट खाली हो गया भूख लग रही है। ओके, यही वो सोल्यूबल फाइबर है जो इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होगा उसको पकड़ के अपने साथ में बाहर निकाल लेता है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करता है। ये आपके गट फ्लोरा को सपोर्ट करता है। गट फ्लोरा बेसिकली ये है कि आपके गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। इसका एक रेशियो होता है, वो रेशियो में होना अच्छा होना, जैसे कि 85 और 15, 85 अच्छे बैक्टीरिया, 85% अच्छे बैक्टीरिया और 15% बुरे बैक्टीरिया चल सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो 85% अच्छे बैक्टीरिया हैं उसके अंदर हर तरह के बैक्टीरिया होने चाहिए। ऐसा कि नहीं कि पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया वही बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया की उनकी जो स्पीसीज है वो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर हर टाइप के हर अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए और अच्छे क्वांटिटी में होने चाहिए। ये आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और या फिर ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक्स्ट्रा शुगर को भी सोल्यूबल फाइबर पकड़ लेता है और अपने साथ में शरीर के बाहर निकाल देता है। किसमें मिलता है आपको? ये एप्पल्स में, बीन्स में, नट्स में, ओटमील में, स्वीट पोटैटो और लेंटिल्स में आपको मिल जाएगा। ये आपके स्टूल मूवमेंट को, बॉल मूवमेंट के लिए बहुत सही काम करता है, बहुत हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया को फ्लरिश करने में मदद करता है। किस तरह से? ये उनका खाना है। सोल्यूबल फाइबर बैक्टीरिया का, अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, तो बेसिकली फिर उनसे उनकी तादाद बढ़ती है, अच्छे बैक्टीरिया और पैदा होने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम समझते हैं इनसोल्यूबल को। इनसोल्यूबल जैसे कि नाम से ही बता रहा है कि ये पानी में नहीं घुलता है। ये आपके बॉल मूवमेंट को और आपके स्टूल मूवमेंट को प्रमोट करता है इन द सेंस कि बल्कि बनाता है और फिर पास करने में मदद करता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल हेल्थ इंप्रूव होती है। कैसे? क्योंकि इनसोल्यूबल फाइबर, ये आप इसको समझिए झाड़ू के जैसे काम करता है। ये हर चीज़ को साथ में समेटते हुए चलता है, साफ करते करते ले जाता है, तो आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छी रहती है क्योंकि इंटेस्टाइन्स आपके साफ होते रहते हैं। ये आपको किस में मिलता है? होल व्हीट में, लीफी ग्रीन्स में, किनोवा में, ब्राउन राइस में एंड सीड्स में। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके स्टूल को बल्क करने में मदद करता है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपने खाया और सीधा निकला, तो बस वो सिर्फ वो बल्कि बनाने का ही काम करता है। अब समझिएगा कि जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि अराउंड 30 से 40 ग्राम आपको दिन में खाना है। अब इसमें दो टाइप के हैं जो इसमें बता दिया, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कितना खाना चाहिए और इनसोल्यूबल कितना खाना चाहिए, अगर आप इसमें ध्यान से समझें तो बात ऐसी है कि सोल्यूबल आपको दिन में 6 से 8 ग्राम खाना चाहिए। ना जस्ट सी, दिन भर में आप पता नहीं 1, 1.5 या 2 किलो खाना खाते होंगे सुबह से लेकर रात तक, लेकिन सिर्फ सोल्यूबल आपको 6 से 8 ग्राम ही चाहिए। और आप माने या ना माने, ये भी आप नहीं दे पाते हो अपने शरीर को। सोल्यूबल फाइबर जो कि इतना बेनिफिशियल है आपके ब्लड शुगर के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, गट फ्लोरा के लिए, और आप हमको उतना भी खाने में नहीं मिलता है। ओके, इनसोल्यूबल अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, 40 में से अगर आपने 8 निकाले तो 32 ग्राम के आसपास, 30 से 35 ग्राम के आसपास आपको मिल जाता है। जो भी आप सब्जी खाते हैं, गेहूं का आटा आप जो आप खा रहे हो उसमें तो मिल जाता है आपको। इनसोल्यूबल में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट का फाइबर। ये एक सोल्यूबल फाइबर है। इसके एक चम्मच में आपको तकरीबन 3.7 ग्राम आपको फाइबर मिल जाता है।
देखिए 3.75 जब मैं ग्राम बोल रहा हूँ, आपको टोटल दिन भर में 8 ग्राम के आसपास चाहिए, तो 50% आपको एक चम्मच में मिल जाता है। एक साथ इसे ज़्यादा नहीं खाना है, शुरुआत 1 चम्मच से करनी है खाना खाने के आधे घंटे पहले, और आस्ते आस्ते इसका आप इंटेक 1 से 2 पे ले जा सकते हो। 2 पे भी ले गए तो आपका तो सारा सोल्यूबल फाइबर यहीं से मिल गया आपको, बाकी जो आपने खाओगे वो एडिशन हो जाएगा। इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप के फाइबर हैं, एक है रेसिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन, दूसरा है इन्यूलिन, और तीसरा है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड ग्वारगम। ग्वारगम जैसे ही नाम से मालूम पड़ता है, गवार, गवार की एक सब्जी होती है, सबको पता ही होगा, नाम बहुत फेमस है, इनफेमसली फेमस है वो ग्वारगम, तो उसके बीज से बनता है। इनोलिन चिकोरी के रूट से बनता है। चिकोरी आपने जो नाम सुना होगा, ज़्यादा करके सुना होगा, कॉफ़ी के साथ जो मिक्स किया जाता है, कॉफ़ी को अगर ज़्यादा कड़क करना है तो उसके लिए आप चिकोरी मिक्स करते हो, तो उसमें से निकाला जाता है इनोलिन। और जो रेसिस्टेंट मेल्टाटॉक्सिन है, बेसिकली कॉर्न से, मकई से निकाला जाता है। ओके, ये 3 टाइप के अलग अलग फाइबर्स हैं, और तीनों के अलग अलग बेनिफिट हैं, जो कि मैंने पढ़ के निकाल के रखें। जो ये रेसिस्टेंट मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या फिर इंटेस्टाइनल कैंसर को रोकने में मदद करता है, रेसिस्टेंट मेल्टोडेक्स्ट्रिन। इन्युलिन ये बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक मतलब ये कि जो मैंने बताया ना कि जब इनसोल्युबल फाइबर गट फ्लोरा को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, क्योंकि जो गट में अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये उनका खाने का काम करता है। तो इन्युलिन बेसिकली गट बैक्टीरिया के लिए, अच्छे गट बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करता है, जिससे उनकी तादाद बढ़ती है और पेट में। और ग्वारगम ये कई टाइप के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया, काम के नहीं। ओके, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, न्यूट्रीलाइट फाइबर को। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक है, और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। और अगर आप इसे पानी में मिलाओ और 30 सेकंड चम्मच घुमाओ पानी के अंदर, ये पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि पानी के अंदर कुछ आपने मिलाया है। इट इज़ टेस्टलेस और एकदम ट्रांसपेरेंट ही रहता है वो, आपको कुछ नहीं लगता कि अंदर कुछ है, दिखेगा ही नहीं। तो फाइबर किस तरह से हमारे गट हेल्थ को बढ़ाता है, जो कि हम पीछे बात कर रहे थे, गट फ्लोरा की। ये अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस बना के रखता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए डाइटरी फाइबर ये हेल्प करता है, और जो काम के नहीं है उनको बाहर निकालने के लिए काम करता है। ये एक प्रीबायोटिक का काम करता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है। और जैसे कि मैंने बताया बार बार कि फाइबर जो है, ये कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम आता है। कैसे? जैसे कि वापस एक बार बताता हूँ, ये जो सोल्यूबल फाइबर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का जो एक्सेस लेवल होता है, जो एक्सेस वहाँ पड़ा होता है, उन सबको अपने साथ में पकड़ के बाहर निकाल लेता है। और क्योंकि फिर ये सारी डाइटरी फाइबर जो भी है, ये अपने पास होता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो सब कुछ साफ करते हुए निकलता है और सारे टॉक्सिन्स भी निकलते हुए चलता है। तो इस तरह से फाइबर हमारे गट को मदद करता है। तो कब खाना चाहिए? सुबह सुबह खाना चाहिए अगेन, क्योंकि हम बात ही करते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन, क्योंकि सुबह काम करते हो, खाना खाते हो, उसके बाद आप काम भी करते हो, और सुबह सुबह खाना खाने के बहुत सारे कारण हैं। इसके लिए हम वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ऊपर एक टॉपिक चलाते हैं, वो आप देख सकते हो। लेकिन फाइबर का क्या फ़ायदा है सुबह सुबह खाने से? फाइबर अगर सुबह सुबह आपने खाना किया, खा लिया, तो आपको जल्दी से दूसरा अगला फूड खाने का, नेक्स्ट फूड इनटेक मतलब अगला फूड खाने का लिए जल्दी आपको नहीं, तलब नहीं लगाता, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है। ओके, आपको लगता है कि सटाइटी, सेंसेशन ऑफ ससाइटी रहती है। आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और गैस्ट्रिक को डिलेज इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, है ना, पेट आपको खाली करने में टाइम लगाता है। इस तरह से फाइबर सुबह सुबह खाने में फ़ायदेमंद है। अब किस तरह से अपने फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हो, और किस तरह से आप अपने खाने को न्यूट्रिशियस रखते हुए फाइबर का रेट आप बढ़ा सकते हो? आप आलू पराठा की जगह पे पनीर, दाल या वेज पराठा खा सकते हो। ब्रेकफास्ट मील की जगह पे आप दलिया वगैरह खा सकते हो। व्हाइट ब्रेड की जगह पे आप होल व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हो।
वड़ा पाव की जगह पे आप इडली सांभर खा सकते हो, व्हाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस, और ब्राउन राइस से भी अच्छा बीफेच राइस आप खा सकते हैं। आइसक्रीम की जगह पे योगर्ट, सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पे लाइम वाटर, फ्रूट जूस की जगह पे होल फ्रूट, यस, फ्रूट जूस मरीजों के लिए। फ्राइड चिकन फिश की जगह पे ग्रिल्ड बॉइल्ड रोस्टेड फिश एंड चिकन खा सकते हो। आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने खाने पे, है ना। अगर कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है तो उसमें आप प्रोटीन और फाइबर अगर आपने ऐड कर दिया तो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाएगा। ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड जो मैंने थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। आप होल ग्रेन्स और लेgumes को यूज़ करें, लेgumes जैसे कि दाल वगैरह या फिर जैसे राजमा वगैरह, इसको भी ऐड कर सकते हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल को अपने खाने में ऐड करिए। स्टार्ची वेजिटेबल क्या होता है, बेसिकली ज़मीन के अंदर होते हैं, ओके, जैसे कि सूरन, आलू, शकरकंद, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इनको अवॉइड करते हुए आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल मतलब ग्रीन्स जो वगैरह हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। लो जीआई इंडेक्स वाले फूड को लें और उसमें भी अगर आप थोड़ा और मास्टर हो सकते हैं तो लो ग्लाइसेमिक लोड वाले प्रोडक्ट को यूज़ करें। माइंडफुल कुकिंग टेक्निक को यूज़ करें। और ये एक चार्ट देखिए आप, किस तरह से आप फाइबर इनटेक बढ़ा सकते हैं। चूज होल ग्रेन और रिफाइंड ग्रेन। रिफाइंड जो भी नाम के आगे रिफाइंड लगाओ ना, उसे आप छोड़ दो, वही सबसे अच्छा है, ओके। ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं। जब भी भूख लगे, स्नैकिंग की कुछ ज़्यादा तलब लगे तो नट्स और सीड्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लें, ओके। पॉपकॉर्न के जगह पे आइल से पर्सनली आप मखाना अगर खा लेते, ओके। ऐड beans, lentils or peas to your soup, salad and casserole. Sprinkle some oat bran, flax seeds. ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और पानी बहुत ज़्यादा पिए, ओके। इसके ऊपर हमारा सेशन चलता है, आप आते रहोगे तो आपको समझ में डिटेल में आता रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे हर सेशन में हमेशा हम बताते हैं और जो इसको फॉलो करते हैं उन्हें पता है इसका बेनिफिट क्या है। हर सुबह उठते ही आप शुक्रिया अदा करें नेचर का। न्यूट्रिशियस फूड खाएं, न कम न ज़्यादा। अपने इंटेंशन क्लियर रखें कि हमें ज़िंदगी में क्या पाना है, पैसे के सब हर चीज़ में, तन मन धन हर जगह पे किस तरह क्या क्या आपको पाना है, कितना पाना है, कब तक पाना है। कुछ नई नई चीज़ें सीखें और एक्सरसाइज डेली करें। ये आप करते रहो, यहाँ पर आते रहो, सुनते रहो, फ़रूक को फॉलो करते रहो। यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रुचिता। Thank you, Manoj. I hope everybody understood the importance and the relevance of what carbs and how much, and fiber, and everything that Manoj just explained so elaborately. Thank you so much, Manoj. With that, guys, we come to an end of this session. Uh, yes, Commander Vadera, please ask your question. You can unmute yourself. Yeah, hi, good evening. Very well explained by Manoj, as always. I have a suggestion. He showed so many slides, PPT, explaining from there. I think to to an average person like me, average intelligence, it's very difficult to comprehend the whole thing in one go. So, and as I can understand, the most important meal of the day is the breakfast, including protein, fiber, carbs, etc., etc. If you've done a good breakfast and the right amount of ingredients, I think you have won 75% of the battle for the day. So, if I may say, if it is possible, I don't know if it will be, if you can put up in the group, which is the, let us say, North Indian breakfast and South Indian breakfast, which is the most staple North Indian and South Indian breakfast, which will have all these right proportions, so that what we are having, the North Indians are having, South Indians are having, we can then compare, okay, this is a benchmark, we are having this, so this may be the shortcoming, which we can make it up. So it'll become a little more practical to,
to work out the correct ingredients of this thing. And I think North and South India is good enough to cover the whole of India. Just a suggestion in case it can be implemented. Thank you. Sure, we can do that, sir. Thank you. I think they'll help out all the participants also. They will be able to better comprehend. Thank you. Thank you, sir. Absolutely. We'll try and put up the breakfast options. With that, we come to an end of this session, guys. Next meeting, we are going to discuss the foundational supplements and protein and the importance. So let's make sure we're all there, logged in with our friends and family. And see you then. Until then, goodbye. Take care. Good night.